Assalamu alaikum and Julay. So, dear student, first of all, I would like to welcome you all on this online lecture of series. So, today we are discussing one of the most important topic from your CBSE textbook, that is the concept of management. As you can say, the fundamentals of management. Fundamentals means basics of management. So in this basics of management, or you can say the elementary or the rudimentary kind of concept, we are going to discuss about in this topic. This topic has the second name also, which is mentioned in your textbook, that is the principles of management. So in this we are try to understand the concept of management. Concept of management means what is management all about, why we need management, is management still relevant in this present era, or and this leads to the second topic, which is the significance of management. Significance means importance of management. Why we need to do management in our daily activities. And the third one is we are going to discuss one of the two most revered modern management thinkers, that is Henry Fayol, who has given the principles of management, and F.W. Taylor, who is called as father of scientific management. And at the end we are comparing between these two thinkers, what their particular contribution to this field of management. It means we are comparing and contrasting both these thinkers' contribution, and at the end we will conclude this beautiful and wonderful topic with a positive note. I hope so. First of all, we try to understand the concept of management. What management is all about. So management means getting work done through other people. सो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैनेजमेंट विच इज़ द पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग हु इज़ ऑन दिस प्लेनेट इज सर्वाइविंग और लिविंग ए लाइफ, है कि नहीं, ही इज़ डूइंग दिस मैनेजमेंट, बट people don't know that what we doing in our daily basis, is this management or not. So we are not discussing a concept which is very new to you. It is a part and parcel of your life. So management means getting work done through other people. It means कि मैनेजमेंट ये हुआ कि भाई हम यहाँ मैनेजमेंट में काम दूसरों के ज़रिए काम करवाना, है कि नहीं. ये आप कहाँ देखते हैं बेटा, ये आप अपने स्कूल में देखते हैं, है कि नहीं, अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं, अपने घर में आप देखते हैं कि आपके गार्जियन जो है आपसे घर के छोटे मोटे काम आपसे करवाते हैं. तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ मैनेजमेंट बेटा, है कि नहीं. जैसा कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में देखते हैं, प्राइवेट सेक्टर में देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस को, इंस्टीट्यूशंस को, कंपनीज़ को, यानी उसमें काम करते हुए एम्प्लॉइज़ को देखते हैं, है कि नहीं, जहाँ पे यानी कोई उनके सुपीरियर जो है सबऑर्डिनेट से काम करवा रहा होता है कि नहीं, बहुत सारे. तो वो सब क्या है, किसका पार्ट है बेटा, मैनेजमेंट का पार्ट है कि नहीं. इन सब को हम क्या कहेंगे, मैनेजमेंट कहेंगे. तो मैनेजमेंट मीन्स व्हाट, गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर पीपल बट इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली. दिस इज अ वेरी की टर्म, है कि नहीं, which we need to understand, and we are going to discuss this in detail in the coming slides. So it involves management is not an one time activity. Again, management is a process, and we know that in process we need to follow a series of steps, sequence of activities we need to follow. Again, once you have done the job of management, it means it doesn't mean that it has ended, it has just started. Again, it has so many processes we need to follow, and it is processes start from what, better planning. Again, planning is what, again, what is our future course of action, what we doing present, or what we going to do, what is our future course of action. It includes in what, planning. In every organization needs what, planning about their human resources, about their projects, about their goals. तो इसका मतलब management starts from where, better planning. Then we will what, organize our resources. We have crucially main two resources, that is man resources and human resources, material resources and human resources. So after that we are what, staffing or leading. Leading means directing. We are giving those resources as well as human to give some directions, and
at the end we are controlling the activities, है कि नहीं, controlling the activities of the whole organization, है कि नहीं, to achieve it is what goals, है कि नहीं. So we understand from this concept that management means getting work done through other people efficiently and effectively. So it involves what planning, management starting from where better planning, then we will organize, then we will staffing, then we will directing, then we will control the entire organization. For what purpose? Because we have goal. Every organization in this world or in our country, we have a goal. Every institution or organization has a goal, and they are behind the goal, and their main purpose is to achieve its goal. For example, we take the example of a company. Suppose company A, who has a goal of to increase their sale by 10% in the coming 1 year. So for this goal, the whole organization, what their manager who sees or who observes the management, who do management of all these things, he will divide, he will first make the plan, and he will divide the human resource, then he will staffing, then he will guiding means directing means what they will do. They will motivate them to achieve those goals, and they will control the entire activity of an organization. Controlling means they will see whether we are doing the work according to the predefined goals or not, preset standards, whether we are doing according to the pre-standards or not. These are all the definition of management. For example, if we will take a simple example, then a school principal manages teachers, staff, and students. For what purpose? To ensure the smooth functioning of the school and achieve a good academic result. That is the basic definition of management. Management means हो गया कि हमें टीचर्स हो, स्टाफ हो, उनके अलग अलग काम है कि टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, दे हैव ऑन देयर पर्टिकुलर रोल, है कि नहीं. सो टू इंश्योर दैट, है कि नहीं, they will, we have given a different set of responsibility, and students have different set of responsibility, and they have to follow this. And the overall observation, who is doing the overall observation? Principal. So what principal is doing? Principal is doing what? Management, है कि नहीं. And management for what? To achieve the good academic result, है कि नहीं. So that is the simple definition of management. So in this management we see that yes, we are getting work done through other people, but what? Efficiently and effectively. Efficiently means doing the work in the best possible way, that is using less time, effort, or resources. If you are doing the work with minimum resources, with minimum effort, and taking less time, then you are doing your work efficiently. Example of that is what? Completing a report in 2 hours instead of 5 hours by using a computer template. That is what? Working efficiently. This is the example of efficiency. On the other hand, we said that management is in management we have very much relevant to the effectiveness also. Effectiveness means achieving the what? Desired result, or the outcome, or the goal. Suppose our goal was to achieve 10% sale. Whether we have achieved that goal or not, that is important. Getting the right outcome. जो इनकम आप चाहते थे कि भाई इस आउटकम जो आप चाहते थे कि इससे अचीव हो, वो अचीव हुआ है कि नहीं हुआ है. तो एग्जाम्पल, द रिपोर्ट that you make, है कि नहीं, that you made helps your boss to make a good decision. अगर आपने जो रिपोर्ट बनाया, उस रिपोर्ट सही बनाया, उस इस रिपोर्ट के बेसिस पे आपके जो सुपीरियर है उसको डिसीजन लेने में अगर उससे फ़ायदा हुआ, तो हम कहेंगे कि आप कौन सा काम कर रहे हो, वो आप अब जो काम कर रहे हो वो इफेक्टिवली कर रहा है. तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट इफिशिएंसी मीन्स डूइंग दी थिंग्स व्हाट राइट, है कि नहीं. आपको जो काम करना है वो सही करना है, जो मेथड अडॉप्ट करना है दैट शुड बी राइट, है कि नहीं. And effectiveness means doing the right things. It means you have to do your work according to the rules, regulation, and within the law and within the moral means of an organization. That is what effectiveness. So I think आपको समझ में आया होगा बच्चों कि मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्या है.
So let's move to the next slide. So here we are going to discuss the significance of management, importance of management. So from this point, 6.5 to 6 point, we will need or we will know the importance of management. That is, management is important. Why? Because it helps in organization in very dimensional role. It has a very multifaceted role. So first of all, it helps in achieving goals, because we said in the definition that one of the important objective of management is to achieve its desired goal. So how that goal will achieve? It is through the bridge of management we will achieve our organizational goals. So management what gives direction to all the employees towards a common goal. सपोज हम एग्जांपल ले सकते हैं कि एक मैनेजर गाइड करता है मार्केटिंग टीम को कि भाई हमें इंक्रीज करना है अपना सेल कितने परसेंट से, 10% से. तो व्हाट ही इज डूइंग, ही इज डूइंग एंड ही इज गिविंग डायरेक्शन टू ऑल द वर्कर और सबऑर्डिनेट्स और वी कैन से एम्प्लॉइज टू वर्क फॉर दिस गोल टू इंक्रीज और improve the sale by 10%. So it means management is pushing the organization to achieve its goal on a specified time. So that is what better from this we know the importance of goals. Why should we need to make goals, and what is the importance of achieving this goal through management. Another one is to increase efficiency. It will help to increase our efficiency, overall organization efficiency. Through which? Through management. Through proper planning and organizing help to reduce two things. One is waste, other one is cost. Through, if we will plan what to do, when to do, and how to do, again these all questions will answer in planning and organizing. We are dividing the resources into different departments and we are giving them authority and responsibility, and we are making a chain of responsibility. So this helps overall the organization to increase its efficiency, and ultimately they will achieve their goal. ठीक नहीं. तो एग्जाम्पल है, एक फैक्ट्री मैनेजर जो है वो अरेंज करते हैं एडवांस में मटेरियल्स, और वाई ही इज अरेंजिंग द मटेरियल इन एडवांस सो दैट द वर्कर और द लेबर यानी विल नॉट वेस्ट और दे विल नॉट डिले इन डूइंग देयर वर्क. ठीक नहीं. तो ये है प्रॉपरली टू अवॉइड एंड वेस्ट. उससे बचने के लिए वो क्या करता है बेटो, मैनेजर ऑलरेडी उसको पहले प्रिपेयर करता है कि नहीं. तो दिस इज द सेकंड पॉइंट थ्रू विच वी कैन अंडरस्टैंड दैट यानी मैनेजमेंट हेल्प्स इन इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. थर्ड वन इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन क्रिएटिंग ए डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन. Management helps the organization to adopt to changes, as we know that changes is part and parcel of our life. Everything is in changes, whether we see or not. That is the secondary thing. Example is that a company adopts new technology. ठीक है. आए दिन आप सुनते हैं कि नई टेक्नोलॉजी जो आजकल तो बिल्कुल तेज़ी के साथ चेंज हो रहा है, चाहे अपने पर्सनल लाइफ में देखें, वेदर वी सी इन प्रोफेशनल लाइफ, है कि नहीं. थिंग्स आर चेंजिंग वेरी फास्ट, है कि नहीं. बिकॉज वट सपोज वी टेक एग्जाम्पल दैट वेयर एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ adopted a new technology to do the things, है कि नहीं. And managers are encouraging the employees to learn those new skills, learn or acquire that new knowledge, है कि नहीं, so that you will do that thing fast and you will update yourself with the technology, updated technology. So it helps. It means management is help to creating a dynamic environment where we can cope and where we can change with the outside environment. So this is the another important of significance of management. And fourth one is develop employees. एक अच्छा मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो मोटिवेट करता है और ट्रेन करता है एम्प्लॉइज़ को कि दे विल परफॉर्म देयर बेस्ट ऑफ एबिलिटीज़, है कि नहीं. तो एग्जांपल कैसे है सर, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू इम्प्रूव स्किल्स. अगर हम स्किल्स देंगे अपने, वेदर इट इज़ कम्युनिकेशन स्किल, वेदर इट इज़ बिहेवियरल स्किल्स, वेदर इट इज़ एप्टीट्यूड स्किल्स, है कि नहीं, इफ विल गिव एंड इम्प्रूव द स्किल्स ऑफ एन एम्प्लॉइज़, तो ओवरऑल देयर फिजिकल, मेंटल, इमोशनल वेलबींग will improve and they will sustain themselves with the organizations. So
management will help to develop employees to their maximum potential. And the last one is maintaining discipline and teamwork. Through management, every manager try to create a coordination between the different worker, different employees, different sets of division and departments, and maintaining good relation among the employees. This is the main task of the managers. So managers' responsibilities are very big. Management responsibilities are very important, and if managers will perform their duties very well, then automatically overall organization will improve. So after that, now we came to the Fayol's principles of management. You can say that principles are principles are rules. Better rules. Principles means rules, or we can say code of conduct, or we can say norms. It has different names in different places. So principle हम उर्दू में कहते हैं उसूल, है कि नहीं, principles. So Fayol's management principles. Fayol is one of the renowned thinker of management who has given 14 principles of management, 8 guidelines for what effective practice. यानी Fayol ये कहता है कि ये सारे जो उसने 14 जो है यहाँ पे principles दिए हैं, वो सब management में यानी वो सब organizations में work करना चाहिए, इनको practically इनके ऊपर काम होना चाहिए, ये कहता है हेनरी फायोल. So here we discuss the key concepts with examples. सबसे पहला हेनरी फायोल कहता है कि there should be division of work, है कि नहीं. ये work क्या होना चाहिए बेटा, division होना चाहिए. Suppose हमारे पास total 10 activities है, तो that is work, है कि नहीं. That should be divided among what 2 or 3 employees, है कि नहीं. So tasks should be divided for what efficiency, so that they will do their particular part of job, है कि नहीं. So this will result in specialization, and this will result in increasing their functional role also, है कि नहीं. So example क्या है, इन रेस्टोरेंट जैसे कि हम देखते हैं कि चेफ्स क्या करते हैं, कुक करता है, खाना बनाते हैं, है कि नहीं. तो वेटर्स क्या करते हैं, उस खाने को सर्व करते हैं, और जो है कैशियर क्या करते हैं, कस्टमर से बिल रिसीव करते हैं. तो यहाँ हमने जो रेस्टोरेंट के जो सारे काम है उसको हमने क्या बेटा डिफरेंट पर्सनस पे क्या किया, डिवाइड किया है कि नहीं. तो दिस विल इंक्रीज द इफिशिएंसी, है कि नहीं. फायोल कहता है कि इससे क्या होगा, यानी काम जल्दी होगा, है कि नहीं. काम में आपको मिनिमम आप एफर्ट से, है कि मिनिमम टाइम और मिनिमम कॉस्ट से आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जा सकता है. तो फर्स्ट इज डिवीजन ऑफ वर्क. सेकंड इज वो ये कहता है कि इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन और वी कैन से इन कंपनीज, वेदर इन पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, in every organization there should be authority and responsibility relationship. Authority means power to take decision. बेटा authority means what, power to take बेटा decisions, है कि नहीं. अच्छा, हर मैनेजर्स को, है कि नहीं, हर सुपरवाइजर को क्या होना चाहिए बेटा, एक पावर लेने यानी डिसीजन लेने की पावर उसके हाथ में होना चाहिए. साथ साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए दोनों की, चाहे आपकी सुपरवाइजर हो या सबऑर्डिनेट्स हो, या आपका ऑफिसर हो या आपका एम्प्लॉय हो, है कि दोनों को अथॉरिटी भी होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होना चाहिए. रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन ऑब्लिगेशन ऑफ ए ड्यूटी, है कि नहीं, परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी प्रॉपरली, है कि नहीं. तो दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो एवरी मैनेजर्स नीड व्हाट, अथॉरिटी फॉर व्हाट, है कि नहीं, टू डायरेक्ट, है कि नहीं, to give direction and ensure that they will achieve the result in a better way. So for example, supervisors, what they will do, they will assign duties or tasks and ensure what completion of that duty. So it means what, we are creating what, authority responsibility relationship between whom, superior and subordinates, so that our work will complete on a specified time. सो दिस इज़ अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी. यानी फायोल ये कहना चाहते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप बिल्डअप होना चाहिए, क्रिएट होना चाहिए. और तीसरा वो ये कहता है कि इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन देयर शुड बी डिसिप्लिन एम्प्लॉय, यानी एम्प्लॉयज़ मस्ट फॉलो रूल्स एंड रेस्पेक्ट
अथॉरिटी, यानी एवरी एम्प्लॉय को ये करना चाहिए कि हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना रूल्स होता है कि नहीं, कि डू और डोंट्स होता है, उसको फॉलो करना है कि नहीं, और रेस्पेक्ट करना है जो अथॉरिटी उसको जो वर्क असाइन करके देते हैं उसकी रेस्पेक्ट करना चाहिए। यानी एवरी एम्प्लॉय शुड बी ए डिसिप्लिन एंड ओबीडियंट पर्सन। सो फॉर एग्जांपल व्हाट बेटर, अराइविंग ऑन टाइम व्हाट इंडिकेट्स व्हाट डिसिप्लिन। एक एम्प्लॉय जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन पे टाइम पे आता है, टाइम पे जाता है, इट मींस दैट एम्प्लॉय इज ए डिसिप्लिन पर्सन, है कि नहीं, डिसिप्लिन एम्प्लॉय, है कि नहीं, गुड। तो ये हमें शो करता है कि ये डिसिप्लिन। तो वही कहता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ भी होना चाहिए। सबसे पहले डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए, फिर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप क्रिएट होना चाहिए, फिर आपको डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए। और फोर्थ कहता है कि यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है कि भाई एक बॉस जो है वो कितने जो है सबऑर्डिनेट्स को लीड करेंगे, कितने सबऑर्डिनेट्स को गाइड करेंगे, ऑर्डर देंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे हेनरी फयोल कहता है कि एम्प्लॉय शुड है कितना होना चाहिए, वन बॉस होना चाहिए, ताकि वो किसका कन्फ्लिक्ट का शिकार ना हो, वो कन्फ्यूजन का शिकार ना हो, है कि नहीं। ही विल नॉट बी इन ए डोलड्रम और इन ए कन्फ्यूजन टू हुम ही शुड बी अकाउंटेबल, है कि नहीं। तो इसलिए एग्जाम्पल है क्या बेटा, वर्कर्स को रिपोर्ट करना होगा किसको बेटा, एक सिंगल मैनेजर को बेटा, है कि नहीं, नॉट टू ए मल्टीपल मैनेजर। अगर मल्टीपल मैनेजर्स को अगर ये कमांड करेंगे यानी ये रिपोर्ट करेंगे तो इट विल क्रिएट कियोस एंड इट विल यानी क्रिएट ए बैरियर इन कंप्लीशन ऑफ ए टास्क। And another one is unity of direction, कि every employee's effort should यानी move in a one direction, है कि नहीं। That is what one group should have one goal only, है कि नहीं, कि हर ग्रुप का अलग अलग गोल नहीं होना चाहिए, कि नहीं हर ग्रुप को एक ही गोल होना चाहिए। एग्जाम्पल द सेल्स टीम, है कि नहीं, होता है जैसे ऑर्गेनाइजेशन में आपको क्या होता है बेटा, बहुत सारे कंपनीज में आपका परचेज डिपार्टमेंट अलग है, सेल्स डिपार्टमेंट अलग है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग है, और उसी तरह से फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट अलग होता है बड़े बड़े कंपनीज में, जिसमें हम रिलायंस का एग्जांपल ले लें, चाहे आपका विप्रो का एग्जांपल ले लें, चाहे आपके इन्फोसिस का एग्जांपल है, चाहे हम पब्लिक सेक्टर में बड़ी यानी महारत्ना कंपनीज का एग्जांपल ले लें, जस्ट लाइक आपका बेल गेल सेल, है कि नहीं। ये कंपनीज क्या फॉलो करते हैं बेटा, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यानी वन ग्रुप को वन गोल देते हैं, कि नहीं। तो इससे क्या होगा, ये सेल्स टीम जो उसको फॉलो करते हैं उस सिंगल प्लान को, ताकि उससे क्या बूस्ट हो सेल, तो है कि नहीं। इसका मीन वन ग्रुप है तो वन गोल है कि नहीं। दैट इज व्हाट यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इट मींस वी आर पुटिंग ऑल द एम्प्लॉइज यानी एफर्ट्स इन टू अचीविंग द वन गोल, दैट इज, है कि नहीं, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन अभी हर ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए, ये हेनरी फयोल कहता है। और वो ये कहता है कि सबऑर्डिनेशन है ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। वो ये कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट को हमें हमेशा ऊपर रखना चाहिए, है कि नहीं, उसको प्रायोरिटी देना चाहिए, उसको इंपॉर्टेंस देना चाहिए एज कंपेयर टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट। क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि वो इसलिए है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में जो है बहुत सारे यूजर्स है, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोगों ने पैसा इन्वेस्टेड किया है कि नहीं। जैसे कि हम अगर एग्जाम्पल ले लेंगे कंपनीज का, तो कंपनीज में सो मेनी देयर आर शेयर होल्डर्स, देयर आर गवर्नमेंट्स on the other hand, है कि नहीं, they have also invested, and there are customers, है कि नहीं, and there are यानी other product users, those are all part of the better organization, and their interest also lies in that organization. So we have to give priority to the organizational interest, यानी it means हमें इंपॉर्टेंस देना कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, ना कि इंडिविजुअल का गोल क्या, इंडिविजुअल क्या चाहता है कि नहीं, हमें उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्स को इस्तेमाल नहीं करना है। तो इसका मतलब है ऑर्गेनाइजेशन कम्स फर्स्ट होना चाहिए, है कि नहीं। तब जाके जो है एम्प्लॉइज शुडंट यूज वर्क टाइम फॉर पर्सनल टास्क, यानी हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आके हम अपने पर्सनल काम को हमें प्रायोरिटी नहीं देना है, उसके बदले हमें किसको प्रायोरिटी देना है, हमें ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट क्या है उसको हमें महत्व देना है, इसको इंपॉर्टेंस देना है। इसके बाद रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है बेटा कि जो लोग काम करते हैं उनके बदले हम उनको कंपनसेशन देते हैं। सपोज एम्प्लॉइज को सैलरी देते हैं, लेबर को वेजेस देते हैं, दैट इज रेम्यूनरेशन, है कि नहीं। रेम्यूनरेशन मीन व्हाट वी आर गिविंग इन रिटर्न टू व्हाट दे हैव डन। सो फेयर पे होना चाहिए, वर्क, है कि नहीं, पे फॉर वर्क होना चाहिए। जिसने जिस तरह का काम किया, जो परफॉर्मेंस जिस तरह रहा, उस तरीके से उसकी क्या होना चाहिए, रेम्यूनरेशन होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल बोनस इज फॉर गुड परफॉर्मेंस, जिस एम्प्लॉई ने अच्छा परफॉर्म किया, अपने टास्क को टाइम पे निभाया, उसकी डिसिप्लिन अच्छा है, उसकी प्रोग्रेस अच्छा है, तो ही शुड हैव गिव व्हाट एक्स्ट्रा बोनस, है कि नहीं, एक्स्ट्रा उसको इंसेंटिव देना चाहिए, वेदर इट इज इन फाइनेंशियल टर्म और वेदर इट इज इन नॉन फाइनेंशियल टर्म्स, है कि नहीं, he should get appreciation for his work.
एंड अनदर वन थिंग इज कि मैनेजमेंट में क्या होना चाहिए, कहता है बेटा सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन मीन्स यानी कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर इन फ्यू हैंड्स बेटा, उसको हम बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। हाँ, ये होता है जैसा कि हमारे यहाँ सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशंस है, या हमारे यहाँ पार्टनरशिप फार्म्स हैं, या हमारे पास कंपनीज है, जहाँ पे क्या होता है कुछ में सेंट्रलाइजेशन होता है, कुछ में डिसेंट्रलाइजेशन होता है। डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स डिसबर्सिंग द पावर टू दी लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि आपको पता है कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट का लेवल जो है एक लेवल का नहीं होता, क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है और लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है। तो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स है कि वी हैव टू डिसाइड दैट पावर शुड बी केप्ट इन द फ्यू हैंड्स और वी हैव टू यानी शेयर द पावर अमंग ऑल द लेवल्स ऑफ एम्प्लॉइज, है कि नहीं, उसको हमें डिसाइड करना है और उस चीज़ को हमें क्रिएट भी करना है। तो ये हेनरी फयोल कहता है कि देयर शुड बी बैलेंस इन डिसीजन मेकिंग, है कि नहीं, जो डिसीजन लेते हैं चाहे वो पूरा ना तो पूरा सेंट्रलाइजेशन की तरफ होना चाहिए ना डिसेंट्रलाइजेशन, दिस शुड बी इन बिटवीन। इसका मतलब हो कि हमें कंसल्टेशन करना चाहिए, यानी सेंट्रलाइजेशन यानी जो सेंट्रलाइजेशन में कौन होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, जिसमें आपका सीओज होता है, आपके एमडीज होता है कि नहीं, आपके हम यहाँ गवर्नमेंट सेक्टर में अगर कहें तो बड़े बड़े ऑफिसर जो ग्रेड ए में होता है, इनका काम होता है पॉलिसीज बनाना, पॉलिसीज को तैयार करना और पॉलिसीज को कम्युनिकेट करना टू दी मिडिल लेवल, है कि नहीं, मिडिल लेवल, एंड अल्टीमेटली यानी इट विल एग्जीक्यूट बाय द सबऑर्डिनेट्स एट लोअर लेवल, है कि नहीं। सो यहाँ पे क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए डिसीजन मेकिंग। सम डिसीजन शुड बी टेकन बाय द अपर लेवल मैनेजमेंट एंड सम डिसीजन शुड गिव टू द लोअर लेवल मैनेजमेंट, सो देयर शुड बी अ बैलेंस, है कि नहीं। एग्जाम्पल है ब्रांच मैनेजर को हमें क्या देना चाहिए, उसको लोकल चॉइसेस देना चाहिए कि आप यहाँ पे काम जिस तरह से आपकी मर्जी है उस तरह से आप चलाएं, क्योंकि यहाँ के एनवायरनमेंट और यहाँ के चीज़ों को, पीपल्स को यू विल अंडरस्टैंड मोर बेटर देन अस, है कि नहीं। तो ये है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों। और अनदर वन इज स्केलर चेन। इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन देयर शुड बी व्हाट, क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू द बॉटम, कि कौन किसको रिस्पॉन्सिबल है, कौन किसको अकाउंटेबल है, कौन क्या ऑर्डर किससे लेंगे, ये बिल्कुल क्या होना चाहिए बेटा, तय होना चाहिए, है कि नहीं, वहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे कि सीओज विल डायरेक्ट टू whom बेटा मैनेजर एंड मैनेजर will direct to supervisor and ultimately supervisor will look after whom better worker. So there should be a scalar chain. Again, in this scalar chain, every line of authority and responsibility should be defined. Again, so that there should not be any delay in execution of a work. And last we have now only 2 or 3 more. So order means every material has a place in its organization. Everything should be in its place in organization. Suppose there is a particular documentation for the whole process of the organization, and there for file there will be a separate place, and for peon or for supervisor and for manager there are particular slots where they have to do their do their job efficiently or effectively. So we can try to understand that everything should be in its place. Files organize होना चाहिए किस बेटा कैबिनेट्स में, है कि नहीं. So this is the place, है कि नहीं. हर चीज़ के लिए एक क्या होता है बेटा, जगह होता है. जैसा कि आपके स्कूल में हम आपके क्लासरूम के लिए अलग सेपरेट जगह है, आपके आईटीसी लैब के लिए अलग जगह है, लेकिन आपके लेक्चर रूम के लिए अलग जगह है, आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए अलग जगह है. तो अलग जगहों में हम अलग अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं. that is what order. And another one is what equity. यानी मैनेजर्स जो मैनेज करते हैं, जो मैनेजमेंट का काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, मस्ट करना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए एवरी एम्प्लॉइज को बेटा फेयरली. यानी देयर शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ अदर ग्राउंड्स, है कि नहीं. तो यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए. यानी बल्कि हमें क्या करना चाहिए, इक्वल ट्रीट करना चाहिए ऑल एम्प्लॉइज इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, इन आवर कंपनीज, इन आवर इंस्टीट्यूशन. एवरीवन इज इक्वल, है कि नहीं. जैसे कि जो कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी कहता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, है कि नहीं, आर्टिकल 14 में. और स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, है कि नहीं. स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर कहता है कि हम अपने एम्प्लॉइज़ को बार बार ट्रांसफ़र या बार बार हम एक से दूसरे जगह शिफ्ट नहीं करना चाहिए. यानी हमें एक उसको मिनिमम एक टर्म टेन्योर देना चाहिए, सो दैट ही विल कंफर्टेबल विथ हिज पोजीशन, सो दैट ही विल अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट बेटर एंड ही फील्स सिक्योर एंड ही कैन टेक सम इनिशिएटिव्स देयर. He can change some groundwork.
तो अवॉइड फ्रीक्वेंट ले ऑफ्स हमें नहीं करना चाहिए। कंपनीज बार बार जैसे कि प्राइवेट सेक्टर में करते हैं, लेकिन जब भी कोई चेंज आया, कोई टेक्नोलॉजी ने रिप्लेस किया ह्यूमंस को, है कि नहीं, तो वहाँ उनको जल्दी ले ऑफ कर देते हैं, है कि नहीं, बाहर देते हैं। तो उससे क्या होता है, जॉब सिक्योरिटी नहीं रहता है। जब जॉब सिक्योरिटी नहीं रहता है तो एम्प्लॉइज कंप्रोमाइज विद देयर इंटीग्रिटी। तो जॉब सिक्योरिटी फोस्टर्स क्या करता है, लॉयल्टी। उसके बदले अगर आप उनको जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं कि भाई आपको यहाँ काम करना है तो आपको मिनिमम 5 साल 6 साल हम यहाँ रखेंगे, ये इंश्योर करते हैं, तो उसके अंदर ये लॉयल्टी पैदा होता है। यानी इस ऑर्गेनाइजेशन के तय जो है वो अपने आप को सेक्रीफाइस करते हैं कि नहीं, दे विल गिव देयर बेस्ट टू दैट ऑर्गेनाइजेशन। एंड second last is initiative. We have to give opportunity to every employee who is, whether he is from top level or bottom level, to encourage new to take feedback, and we have to give them opportunities to take what consultative decisions. तो इनकरेज न्यू आइडियाज़ देना चाहिए हमें एम्प्लॉइज से। जैसे कि एक वर्कर जो है प्रपोज करता है फास्टर पैकेजिंग मेथड, वो हमें प्रपोज करता है, तो वी शुड इम्प्लीमेंट दैट, वी शुड वेलकम हिज आइडियाज़, है कि नहीं। द ईगो शुड नॉट बिकम इन बिटवीन दैट आई एम द बॉस एंड हु आर यू टू गिव मी द सजेशन। नो, that kind of environment should not be in any organization. And the last one is esprit de corps. Esprit de corps means है कि नहीं, we have to build a team, है कि नहीं। esprit de corps means we have to work in unity and teamwork, है कि नहीं। So if there is any suppose if we will achieve the target, है कि नहीं, then we have to celebrate the success together in the office, है कि नहीं। So that shows that we are one, है कि नहीं, we are united in our action, है कि नहीं, and we are doing our best to improve or to level up the organization to the next level. So these are all the principles of Henry Fayol, and ये बहुत important है from your exam perspective. So dear students, we completed today's topic here. So till now we discussed the concept of management, the importance of management, and the Henry Fayol's principles of management. 14 principles we have discussed. So I hope that you guys will revise this at your convenience at your home. So we'll meet in the next class. Have a nice day. Thank you.